روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، اگست، کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں؟ ایک ڈیٹ تو دے دیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نا. آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے. آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے. ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائے، لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہیں. یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے، پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لی ہے کہ جی. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں. ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے، سپریم کورٹ میں تھے، اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. 5 سال ٹینور ختم ہو گیا. پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں، ہم اپنی موبلائزیشن کریں، ہم اپنی کمپین کریں. ہم نے چاروں صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے، ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے. لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی. تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، آئین اور قانون کے مطابق دے، جو آئین میں اس کے مطابق دے، تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک حکومت ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے، اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے، یا پھر 2 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر مارچ، پھر فروری. آپ اس میں الیکشن کروائیں. پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے. میں بھی ندیم حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ گزارشات اگر پہلے ہم کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا، اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر، ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں. اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب اگر کوئی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو، 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو. اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے. تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں، تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے. کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے. اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی. ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا، فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو، وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی. ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم. چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا. تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی. تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے. اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے، ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون. آپ خوشی سے سندھ میں آئیں، لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا، کب گھوٹکی کا دورہ کیا، کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے، کتنے 7 شریف کے دورے کیے، کتنا آپ خیر پور گئے.
आप इतनी दफा वजीर आजम रहे, इतनी दफा वजीर रहे, तो हमने तो नहीं आपको रोका, आपको फैसिलिटेट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पीपल्स पार्टी का यही मौकफ है। हमें ना सैफ उर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जवेद इकबाल वाला। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बगैर एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। यही हमारा मौकफ है, इसमें जिसके मर्जी फैसला है। दूसरा, जुडिशरी के हवाले से हम समझते हैं कि हम जुडिशरी में ना जस्टिस कयूम वाला माइंड सेट चाहते हैं, ना हम जिस तरह सियासी तौर पर ज़ियाउल हक की बाकियात चाहते हैं कि सियासत में वो माइंड सेट रहे, और ना हम निजाम अदल में इफ्तिखार चौधरी वाला माइंड सेट चाहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी की बाकियात भी निजाम अदल में रहे। ये पूरी कौम ने देखा है कि इन बाकियात ने इस मुल्क को पीछे की तरफ धकेला है, आगे की तरफ नहीं धकेला। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुख्तगी का मुजाहरा जरा अपने दामन में आप खुद ही देख लें। हम बोलेंगे तो आप नाराज होंगे। शुक्रिया। चीमा साहब 2 मिनट अगर तो कहते सिंध से गुजरती है ट्रेन हमारी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सिंध पाकिस्तान का एक बड़ा बावकार और तारीखी सूबा, बिस्मिल्लाह, हर जमात को हक है। लेकिन जहां जहां भी ये सियासी जमात जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, अलायंस बनाने के लिए, तो मेरी एक दरखास्त है कि इसहाक डार साहब को साथ लेके जाएं, ताकि वो हर जगह इनके साथ हो, हर जलसे में साथ हो, और अवाम जौन सी है वो फिर डायरेक्ट बिल मुशाफा उन डार साहब से मुलाकात जरूर कर ले जो कि वापस जा चुके हैं। पुख्तगी चेयरमैन एक पुख्ता सियासी जमात का चेयरमैन है, और उसकी पुख्तगी तो पाकिस्तान खप्पे की वक्त भी दिखी थी, उसकी पुख्तगी फॉरेन पॉलिसी के वक्त भी दिखी, हर मुकाम पर है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में हमारी बड़ी जायज ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश हमारी पूरे पाकिस्तान से है, अवाम से भी है, कि जो हमारे साथ हमेशा की तरह हर इलेक्शन में एक नाजायज तरीके के साथ और एक पूरा इंजीनियर्ड एक प्रोग्राम बना के तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि वाहिद सियासी अवामी जमात है, अवाम की आवाज की अलम बरदार है, उसके दुख सुख की शराकतदार है। तो इस दफा हम इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे। नए चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको आने पे मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान की तवक्को और बिलखसूस हमारी जमात की कि वो पाकिस्तान में कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, और उनका हर फैसला जौन सा है वो आवाम की और आइन और कानून की पासदारी के लिए होगा। शुक्रिया जी। ये फरमाइए, ये बात करना है जी मैं करता हूं। कि जो आपका सीट में इजलास हुआ तो सबसे ज्यादा उसमें फोकस पहले नंबर पे ये स्कूल में भी ये देखने आया कि ये यही रहा कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए प्रेशर डालना। लेकिन जब इजलास हुआ या ब्रीफिंग हुई उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आप किस हद तक जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाए, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे। बस सिंपल सी कह रहे कि जल्द अज जल्द ऐलान करते हैं, जल्द अज जल्द दे दे, ये तो सभी कह रहे हैं। आप कौन से लोगों का काम कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने, किसी ने, मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी है हो, उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं, ताकि हम क्या, इलेक्शन इस चीज़ का है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागार न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें एतमाद है अपनी निगरान हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे कि ये दोनों मिलकर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक
सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं, तो वो उस चीज़ का सदबाब करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाए, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाए और उसी को मैंडेट देना चाहिए। साहब ये रहनुमाई फरमा दें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है बड़ी बेकरार है कि हमें तारीख दी जाए, लेकिन अवाम मायूस है। ये 15-16 महीने के अंदर उनके साथ वो बुरा सलूक हुआ है जो उन्हें अब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इलेक्शन के नतीजे में। आप बताएं कि क्यों मायूसी पैदा हुई? आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, अवाम बिल्कुल अवाम की मायूसी जायज है, महंगाई हो, बैड गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो। हमारे चेयरमैन ने भी यही कहा है कि अवाम की मायूसी अल्टीमेटली पार्लिमानी निजाम में सियासत इलेक्शन के बाद किसी हुकूमत नहीं खत्म करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो इस मुल्क में 37 ईयर्स अयूब खान, जियाउल हक, फिर मुशर्रफ, वो सदारती निजाम ही था अमलन, तो अल्टीमेटली आप सारी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पे तो हम डाल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी निजाम इस मुल्क में है, तो छोटे सूबों बड़े सूबों को सबको जब नुमाइंदगी का हक मिलता है तो वो इलेक्शन के बगैर तो नामुकम्मल चीज है। इलेक्शन ही हल है इस मायूसी को खत्म करने के लिए, और अवाम को अगर रिलीफ देना है तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने देना है, किसी सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं देना। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी सब बातों से यूं लग रहा है कि नून लीग और आप जो है वो आपने सामने होने जा रहे हैं, तो यही जो इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं पंजाब में, केपीके में। उस वक्त शायद आप सबके मुफादात एक थे पीडीएम के, और उस वक्त आप इकट्ठे हो गए। अब आपके मुफादात एक नहीं रहे, अब आप वही कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम आपका साथ देगी? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है, और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं सियासी मामलात में जरदारी साहब का मतलब उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा कि हमारे जो पार्टी का इजलास हुआ है उसका सारा इख्तियार हमने आसिफ जरदारी साहब को दिया है, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब आपसे इत्तेफाक करेंगे? देखिए, जो सीसी की मीटिंग हुई इसमें उसको चेयर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। हमें सीसी में हर शख्स को इख्तलाफ राय का भी हक है और हर किस्म की बात करने का हक है, और हमने अपनी सारी चीज़ें फुल फ्लैज डिस्कशन के बाद हमने इख्तियार दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वो जाकर जो है वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो डायलॉग्स करते हैं, और हमने वो इख्तियार दिया, और हमने वहाँ पर बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी किए हैं। और बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि सीसी इजाज़त देगी। पहले भी सीसी का इजलास हुआ था, उसके बाद जो है दोबारा सीसी का इजलास हमने कहा था कि लाहौर में होगा, वहाँ पर हमने उनको इख्तियार दिया है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम आमने सामने देखें, हम पहली बात है कि पीडीएम का हम इत्तेहादी नहीं है, पीडीएम के हम इत्तेहादी थे, हम पीडीएम के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात थे। देखिए, हर इलेक्शन में अपना एक अलायंस बनता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को तोड़ें। और देखें, 13 जमातों का इत्तेहाद एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में मुश्किल से जाएगा। आप 13 जमातें कहाँ पर अपने पार्टी की कुर्बानी देंगे? हाँ, सीट एडजस्टमेंट शायद हो सके, कुछ पार्टियों की आपस में इत्तेहाद हो सके, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन जो चीज़ जहाँ तक आवाम के मसले, बिल्कुल हम समझते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कल फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। इसमें जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अपने अशराफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी। और यही हम कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम जो है जिसको भी मैंडेट हमने पहले कहा के देती है वो आए और कानून साजी करे और इस मुल्क को आगे लेकर चले। अदनान मलिक साहब, एक मिनट अदनान मलिक साहब आपके पास भी आ रहे हैं। ये फरमाइएगा, कैसे है कि मोमन एक सुराग से दूसरी मर्तबा नहीं डसा जाता, लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत के नाम पर बार बार एक ही जमात से डसती है और डसी जाती है, और उसके बाद ऐसे चीखती है जैसे कार की दरवाजे में उसका अपना ही आता है। मोमिन जवाब देगा इसका। देखिए, आपकी बात ठीक है कि मोमन एक सुराख में, लेकिन हमने इताद किया है मुस्लिम लीग नवाज से, हमने कभी भी जियाउल हक की बाकियात से इताद नहीं किया। अब ये उनके माइंड सेट में है, अब ये उनका माइंड सेट है कि वो पुराने वाला माइंड सेट को लाना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में जिद्दत पैदा हो, आगे चला जाए। इत्तेहाद के वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज होते हैं, बाद में वो बाकियात होते हैं। आपने जियाउल हक की बाकियात आप नहीं किया, जबकि आपके ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ का नाम लेके कह चुके हैं कि ये तो जियाउल हक का बेटा है।
आप कहते हैं कि हमने जियाउल्लाह की बाकिया से इत्तेहाद नहीं किया, नवाज शरीफ का नाम लेके चेयरमैन नहीं, इसका जवाब हम पहले आपको दे चुके हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मियां साहब 21 को वापस आएंगे, अगर आ गए वापस तो आप ये उनसे सवाल कीजिए। ये बताइएगा कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मरियम नवाज का ये कहना है कि उनके आते ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मरियम नवाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि, या नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आते साथ ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? और ये भी दूसरा सवाल ये भी है कि बताइएगा कि जैसे अब हालात चल रहे हैं, पार्टीज जो है जिनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था अब वो अदम एतमाद का इजहार करिए, तो आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं? इस पर आप क्या? देखिए, मियां साहब ने कहा है कि गालिबन वो 21 अक्टूबर को पार्टी की ने फैसला किया 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। वो एक सियासी शख्स हैं, हम उनको वेलकम करते हैं सियासत के मैदान में। अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम वो लीड करेंगे, तमाम आईनी और कानूनी, आईनी तो नहीं कानूनी, उसके बाद जो उनका जो उनकी लीगल टीम उनको रिलीफ देती है, लेके देती है जो भी है, क्योंकि वो यहाँ जेल से गए हैं इलाज के सिलसिले में। जब वो वापस आते हैं तो उनका जो है अदालतों ने फैसला करना है कि उनका क्या स्टेटस है, वो इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं नहीं चला सकते। लेकिन हम कहते हैं तमाम के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, तो इसमें हम मियां साहब भी मौजूद हैं। जहां तक आपने बात की है, देखिए हमें एक आज़ाद पार्टी है, हम एक जमहूरी पार्टी है, हम डायलॉग्स के जरिए बैठते हैं और पार्टी से मशावरत इसी में कोर कमेटी में होती है, उसके बाद इत्तेहाद हो सकती है। देखिए, इस मुल्क में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था गुड एंड बैड का। हम सुनते ये गुड है, ये बैड है, तो अगर गुड पीटीआई होगी तो हम उससे बिल्कुल, अगर वो पार्टी चाहेगी और सीसी चाहेगी, लीडरशिप चाहेगी तो इत्तेहाद हो सकता है, बैड के साथ नहीं हो सकता। अब उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको दूं, गुड वो होंगे जिनको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने देगी, बैड वो होंगे जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं और जिनको सजाएं हैं या जो कुछ भी है। तो गुड के साथ तो जब उनको इलेक्शन कमीशन बुलाएगी और उनको इजाजत होगी, तो हर किसी को इजाजत है नए इत्तेहाद बनाने की, नए बातचीत करने की। हम तो हमेशा डायलॉग्स और रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा गुंडी साहब, मुस्लिम लीग के पास आइंदा इंतखाबात के लिए बेचने को उनका 13 से 17 का दौर है, वो कहते हैं हमने 65 का पेट्रोल दिया। आपके पास क्या है? 2008 से लेकर 12-13 तक पेट्रोल भी महंगा हुआ, 100 तक गया, डॉलर भी महंगा हुआ, लोड शेडिंग 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर जैसे शहर में भी देखी गई। उन्होंने आके कंट्रोल किया, वो कहते हैं हमारे पास बेचने को। आप किस तरह आवाम को कन्विंस करेंगे? आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुझे बता दें कि लाहौर का कितना लाहौर है जो साफ पानी पी रहा है? लाहौर की एनालिसिस कर ले, पंजाब की एनालिसिस कर रहे हैं, हेल्थ देख ले, आप लाहौर का हेल्थ सेक्टर और सिंध के हेल्थ सेक्टर से मुवाजना कर लें। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक मुतबादल प्रोग्राम दिखा दें जो उन्होंने किया हो। आप लोगों को नौकरियां देने का और नौकरियों से निकालने का मवाजना कर लें। आप गंदम की फूड सिक्योरिटी, इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर पीपल्स पार्टी ने गंदम की कीमत बढ़ाई थी तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा गंदम सरप्लस हुई है, यानी कि बड़ौले भरे गए सन, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। आप हमारा उनसे मवाजना करते हैं जो चीनी एक दफा बाहर बेचते हैं, फिर चीनी अंदर लाते हैं, आटा बाहर बेचते हैं, अंडा अंदर लाते हैं। उनसे मवाजना हमारा ना करें। जी है, में ये बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, हो सकता है उनकी आला क़यादत को जेल भी जाना पड़े। नून लीग वाले एक नारा लगाते हैं कि मियां जी दो आएगा लग पता जाएगा। देखें, हम चाहते हैं कि मियां साहब जरूर वापस आए, लेकिन मियां साहब जब एक भाई वजीर आजम हो तो मियां साहब क्यों नहीं वापस आए? तो ये सवाल आप उनसे करें। हम तो वेलकम करते हैं, लाग पता उनको जाएगा जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मियां साहब को नहीं आने दिया। एक घर में वजारते हो तो और दूसरा भाई मुल्क में ना आ सके, लाग उनको पता जाएगा। एक मिनट, इधर से फिर इधर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की बहाली का आर्डर जारी कर दिया है, तो क्या निगरान हुकूमत की डोमेन में आता है कि वो अपील में जाए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का दायर का हक रखती है, और क्या पीपल्स पार्टी भी कोई नजरसानी के लिए दरखास्त देगी सुप्रीम कोर्ट में नैब के फैसले के बारे में? मेरे ख्याल ये सवाल है कि ये यार आपने ऑलरेडी किया। नहीं, जरा इधर ले ले, इधर आप बता दें। राइट है, एक मिनट भाईजान, एक मिनट होगा, सबका हर एक का राइट है। ये है कि पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता है। पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में ऐसा क्या लाए और लाएगी कि पंजाब में वो अपना नाम बना? जहां तक आपने बात की है नैब की, मैंने पहले इसके ऊपर क्लियर कर लिया है कि हमने पहले अब नैब से डरे हैं। हमने नैब को पहले भी भुगता है, हम फिर भी भुगत लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अदल होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले भी रहे और हमने मुल्क तो कभी भी नहीं छोड़ा। हम तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 11 साल जेल गुजारी, फिर पीटीआई के दौर में भी उन्होंने जेल गुजारी,
उनको भी क्या ऑफर नहीं हो सकती, आप मुल्क छोड़ के चले जाए, इलाज के बहाने चले जाए, कुछ कर लें, लेकिन वो इधर ही रहे, कभी भी बाहर नहीं गए। और उनका चेकअप भी ड्यू था उस दौरान, जो 3.5 साल दौर था, वो एक दिन भी बाहर नहीं गए, न उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर भेजा जाए। तो हम तो इस चीजों से जो है हम नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे ना हो कि फिर आप कहें कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस तरीके से करें कि आप अगर ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाएंगे तो आप जमजम से धुल जाएंगे, अगर आप इस पार्टी में रहेंगे तो गलत होगा, लेकिन आप करते रहें। हम कहते हैं गलत लोग जिस पार्टी में भी है, एक मिनट, गलत लोग जिस पार्टी में भी है, एक सेकंड सर, गलत लोग जिस पार्टी में भी हैं उनका एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एहतसाब इंतकाम की सूरत में नहीं होना चाहिए, बराबरी की बात। आपने, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पीपल पार्टी के पास क्या है कि नून लीग गढ़ समझा जाता है। देखें, नून लीग गढ़ और गढ़े में बड़ा फर्क होता है। अब पहले गढ़ था, अब उनके लिए गढ़ा बना हुआ है। तो यही पंजाब नहीं, मैं अगर गढ़ा ना होता तो वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। मैं आपको देखें, आप दूसरा ये जो बाजू मरोड़ पॉलिसी है ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल वर्करों की एक बाजू मरोड़ पॉलिसी, आप शुरू हो जाए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से, जनरल हमीद गुल से और आज तक, इसका विक्टिम अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन जो सीनियर्स है आप किताबों में पढ़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी होंगे, फिर पीपल्स पार्टी अगर पंजाब से वॉश आउट होगी तो फिर मैं आपसे हम कहेंगे, फिर अगर अभी तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती ही नहीं है। आखिरी 2 सवाल कर लें। सर, आप इक़्तिदार में रहे पिछले 16 महीने, पीडीएम का हिस्सा रहे, तब महंगाई पे इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जो ही आप हुकूमत से बाहर आए तो महंगाई पे बात शुरू हो गई, बिजली महंगी हो गई, ये चीज महंगी होगी, वो चीज महंगी होगी, लेकिन इक़्तिदार में रहते हुए आपने कोई अमली इक़दाम नहीं दिखाया, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा गुरु साहब, इस वक्त मुल्क का जो सबसे अहम मसला है वो निज़ाम अदल है। इस पर हर जमात जो है वो आवाज उठाती है, लेकिन डरती भी है। लेकिन जब फैसला हक में आता है, गुड फैसला, हक में ना आए बैड फैसला, नजरिया के साथ हो गए। और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुझे सियासी मामला में उलझाए रखा और काम नहीं करने दिया, ये आप लोगों का कसूर है। तो निज़ाम अदल दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी है, अवाम के लिए बड़ा मसला है ये, इस पर बात नहीं होती, ना आप दुरुस्त कर पाते हैं, डरते हैं। देखें, हम जब 16 महीने हुकूमत में थे उस वक्त भी हमें इस चीज का एहसास था, महंगाई का, चीजों का, हमें मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जो हालात माजी की हुकूमत ने खराब किए थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ उनकी बहाली के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। 16 महीने में जिस तरीके से वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को वापस पाकिस्तान के करीब लाया, वो भी आपके सामने है। उस दौरान फ्लड भी आया, यूएन सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पर लेके आए, फ्लड रिलीफ के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, बाकी चीजें की, वो सबके सामने हो रही है। हम कभी भी नहीं चाहते, हमने तो हमेशा आवाम को रिलीफ दी। इस दौरान में माजी की हुकूमत ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज सिंध में खवातीन को मालकाना हकूक दिए जा रहे हैं, खवातीन को, और 20 लाख खवातीन को जो है उनको मालकाना हकूक दिए जा रहे हैं ताकि अपने घर में रह सके। हम अमली इक़दाम करें। बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम के आपने अभी नदीम साहब ने बात की, आप उसके प्रोजेक्ट को देख लें। जिस तरीके से हमने अपने बाकी अभी भी सर्वे शुरू है, हमने उसमें उनके बच्चों को भी वजीफा एजुकेशन वजीफा देने की वो की है, बहुत सी चीजें हमने की। हमने देखे बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त 9 मिलियन प्लस बेनिफिशियरी पूरे मुल्क में, उनको जो है वो फंडिंग हो रही है। हमने ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया इसमें। हमने जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस देने के उसको भी हमने ऐड किया। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर हमारी जो खवातीन है जो बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम में है, हमला खवातीन, उनके 2 साल के बच्चे, उनको भी जो है हमने उसमें ऐड किया। और ट्रांसपेरेंसी, माजी हुकूमत ने सिर्फ 2 बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया था और हमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत गबन हो रहा है। हमने उनके लिए बैंक अकाउंट की तरफ चले गए कि हर बेनिफिशियरी, पायलट प्रोजेक्ट शुरू है, हर बेनिफिशियरी जिस बैंक में भी चाहे जो कि स्टेट लाइफ के साथ है, स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, वो उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट डेबिट के जरिए उनके पैसे बैंक में जाएंगे। मिडिल मैन का किरदार हमने खत्म किया, तो गरीब आवाम के लिए चीजें हो सकती हैं। दूसरे सवाल के जवाब नदीम साहब देंगे जो उन्होंने देखिए, जो निज़ाम अदल की बात की है मेरे भाई ने, बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में यकीनन इस वक्त अगर कोई सबसे बेसिक चीज की जरूरत है तो निज़ाम अदल में रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन हिस्टोरिकली जब चार्टर डेमोक्रेसी में ये कोशिश की गई शहीद बीबी और मियां साहब के दौर में, लेकिन जब जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार आया
تو آپ چیک کر لیں, رضا ربانی صاحب سے پوچھ لیں کہ نون لیگ کا کون عہدیدار ان کے پاس آیا تھا کہ افتخار چوہدری صاحب ناراض ہو جائیں گے, پلیز ججز کی معاملے میں نہ چھیڑیں ورنہ ساری ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. پارلیمنٹ کو ہمیشہ بلیک میل انگوٹھے کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے, اور یہ تاریخی طور پہ جنہوں نے نظریاتی طور پہ غلطیاں کی ہیں اب زیادہ ذمہ دار ہے. پیپلز پارٹی تو اس نظام عدل کی غلطیوں کی وکٹم رہی ہے. جو بینیفیشری رہے ہیں, ہماری ان سے گزارش ہے, آپ کی وساطت سے بھی, کیمروں کی وساطت سے, کہ آگے جس کو بھی موقع ملے بنیادی کام یہی ہے کہ اس ملک کا نظام عدل ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا آج آپ الیکشن میں جا رہے ہیں عوام کے پاس, جن تحفظات کا اظہار آج آپ کر رہے ہیں, نون لیگ کے ساتھ آپ کو تحفظات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, جوڈیشری کے ساتھ ہیں, لیکن اس عوام نے 1.5 سال پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ آپ جب اتحادی بنے ہوئے تھے, جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی آپ نورا کشتی کھیلیں گے, لیکن عوام نے اس کی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو پریس کانفرنس کے آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ آپ نورا کشتی ہم کر رہے ہیں, جو بینیفیشری ہیں وہ کر رہے ہیں, جو وکٹم ہوتا ہے وہ نورا کشتی کرتا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے 90 روز میں الیکشن ہوتی ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے والے دنوں میں کوئی الائنس, کوئی اتحاد بن جائے؟ تو پہلے میں نے سوال دے دیا ہے, گڈ اور بیڈ کا دے دیا ہے. آخری سوال یہ بتا دیجیے کہ آپ نے طریقے انصاف کے خلاف دیکھے جو عدمت معاذ لے کے پرائم منسٹر بنانے تک اور 16 ماہ حکومت کا تمام قانونی معاملات میں آپ یکجا دیں, تو کیا یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی آپ کے الیکشن کب ہونے ہیں؟